Hi students, welcome again in the new episode of Science, and in this video I am going to explain NCERT exemplar problem of chapter number 8, and the name of chapter is Wind, Storm and Cyclone. In this chapter the quality of question is very tricky and very interesting. If you are going to watch it till end, you are going to have command on each and every concept of this chapter. You will gain new insight, this I promise you. So let's start with question number 1. A fire alarm usually detects smoke in case of fire, and where should such alarm be placed in a room? So the fire alarms are actually placed on the ceiling, okay, and it is very sensitive to the temperature, and it detects the smoke, okay, and when such situation arises, it start buzzing and produces sound, and we come to know something, some fire is going to outbreak. So question number 2, 4 schematic diagram are shown in figure number 8, and we have to see which one of them tells about the direction of sea breeze. This is not possible, and this is for the land breeze, okay, and this is again vague, so the correct option is C. So dear students, let me tell you what is sea breeze. Sea breeze is the breeze, as the name suggests, which blows from sea toward the land. Because what happens during the daytime, sun gets heated up, and it heats up the land, and air above it gets heated up and it rises because hot air is light, so it starts moving toward the toward the height, and to take its place, sea breeze comes toward the land, and sea breeze normally blows during the daytime or in the afternoon. Question number 3. Figure 8.2 shows a child blowing air in a straw near the opening of another straw which has its other end in a soft drink bottle, and it was observed that the level of the soft drink in the straw rises up as soon as air is blown over its open end. Now, which one of the following best explains the reason for rise in the level of the drink? तो बच्चों यहाँ पे एक बच्चा है जो ब्लू कलर की स्ट्रॉ से बहुत तेज़ी से हवा बाहर की ओर ब्लो कर रहा है, और उस हवा को वो ब्लो कर रहा है किसके ऊपर? एक रेड स्ट्रॉ के ऊपर, जो कि एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिप की गई है। तो जैसे ही बच्चा हवा ब्लो करता है तो कोल्ड ड्रिंक में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक का लेवल राइज करने लगता है और इस रेड स्ट्रॉ से बाहर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो बच्चों एक हमेशा हम याद रखिएगा, जब भी हवा तेज़ी से किसी सरफेस के ऊपर से गुजरती है तो उस सरफेस के ऊपर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक यही चीज़ हो रही है अभी यहाँ पे रेड स्ट्रॉ के ऊपर, कि तेज़ी से हवा मूव कर रही है तो रेड स्ट्रॉ के ऊपर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है, और भीतर जो पाइप है उसके अंदर प्रेशर एज कम्पेयर टू द अबव बिकम्स मोर, और इसीलिए वो हाई प्रेशर के इफेक्ट की वजह से राइज करने लगता है और रेड स्ट्रॉ के माध्यम से वो जूस बाहर आ जाता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ब्लोइंग ऑफ एयर डिक्रीजेज द प्रेशर above the opening of the straw. So question number 4, following are the precaution one must take in case of storm accompanied by lightning. तो इनमें 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और हमने डिटेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है, तो हमें पेड़ के नीचे कभी भी शेल्टर नहीं लेना है, बिकॉज ट्री इज़ वेट एंड लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन हायर एंड लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स, और अगर वहाँ पे वो स्ट्राइक हो गई तो उसके नीचे खड़ा व्यक्ति को भी बिजली गिर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द अम्ब्रेला विद अ मेटलिक एंड। वी नो द अम्ब्रेला having metallic end is good conductor of heat electricity, so if the lightning fall on it, again it can strike on that fellow who is holding that umbrella. Question number जो फोर्थ का थर्ड पार्ट पे हम आते हैं, डू नॉट टेक शेल्टर इन गैरेज, ओके, डू नॉट टेक शेल्टर इन ओपन गैरेज एंड स्टोरेज शेड्स।
देखिए भैया, ये बिल्कुल सही बात लिखी गई है ये बात भी, क्योंकि ओपन गैरेज में बहुत सारे मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो गीले हैं, लाइटनिंग अगर स्ट्राइक करें तो अगेन इट कैन प्रूव डेंजरस फॉर द पर्सन अराउंड देयर। और चौथा ऑप्शन है डू नॉट टेक शेल्टर इन अ बस इन ओपन। खुली जगह में एक बस है तो भैया उसमें आपको चले जाना है शेल्टर लेने के लिए, तो ये डू नॉट लिखा है, इसकी जगह डू टेक होना चाहिए, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। चारों ही कोस्टल एरियाज हैं, लेकिन पोरबंदर में साइक्लोन सबसे ज़्यादा आते हैं। ये कोस्ट समंदर के ज़्यादा टच में है, एरिया भी कंपैरेटिवली छोटा है। अ कर्टन इज हैंगिंग एट द एंट्रेंस ऑफ ए रूम। तो बच्चों ये अ लॉन्ग, आप यहाँ पे देखिएगा, अ लॉन्ग कॉरिडोर रन्स एट राइट एंगल टू द डोर दैट इज पैरेलल टू द कर्टन। इफ द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अलॉन्ग द कॉरिडोर द कर्टन विल। तो कर्टन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मैं आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। एक लॉन्ग कॉरिडोर है और यहाँ पे एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे पे एक कर्टन लगा हुआ है और इस कॉरिडोर से तेज़ हवा चल रही है। तो यहाँ ये जो कर्टन लगी है, ये कर्टन किधर को जाएगी, वेदर इट विल बी पुश्ड इनसाइड द रूम और आउटसाइड द रूम और नो इफेक्ट और गेट कलेक्टेड टूवर्ड वन एंड। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसकी वजह क्या है, अगेन वही थंब रूल मैंने आपको बताया है कि जब भी तेज़ हवा चलती है तो जो एरिया, ये जो कर्टन, जो सरफेस इस तेज़ हवा के कांटेक्ट में होता है, वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बिल्डअप होता है और कमरे के अंदर की जो हवा है वो हो जाती है, उसका प्रेशर हो जाता है हाई एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर आउटसाइड द कर्टन। तो इसीलिए ये कर्टन बाहर की ओर धकेल दी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज चंडीगढ़ अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाई ए साइक्लोन। भैया इसके आसपास कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स नहीं पड़ते हैं। Question number 8, name the ocean which is mainly responsible to bring the rain bearing monsoon winds to Kerala coast in June every year. So the name of ocean is Indian Ocean. बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Air around us exerts pressure. The moving air is called as wind. The main cause of wind movement is uneven heating on the earth. हाई स्पीड विंड कैन काज साइक्लोन इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10, आपको ट्रू फॉल्स मार्क करना है। इफ़ द विंड फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन देन इट इज़ डे टाइम। भैया लैंड टू ओशन जा रहा है तो वो लैंड ब्रीज है, तो लैंड ब्रीज जो है दिन के समय में नहीं चलती है, रात के समय में चलती है, इसीलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड सराउंडिंग इट फॉर्म्स अ साइक्लोन। तो यहाँ पे आना चाहिए लो प्रेशर सिस्टम, इसलिए ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन। ये तो बिल्कुल गलत बात है, जो भी साइक्लोन पढ़ते हैं वो कोस्टल लाइन पे ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने नॉट लिख दिया है, इसलिए ये फॉल्स है। वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, ये हम सभी जानते हैं सही है। Question number 11, to expel the hot air out of the kitchen, A has exhaust fan fitted on the window of her kitchen and B has similar exhaust fan fitted on the wall near the ceiling of her kitchen. Now which of the exhaust fan will expel more hot air या hot air more effectively? तो यह जो आपका सीलिंग, जो आपका एग्जॉस्ट फैन जो बिल्कुल आपकी विंडो में लगा हुआ है किचन के, उसमें हाइट कम है, लेकिन जो बी वाला आपका एग्जॉस्ट फैन है वो बिल्कुल सीलिंग के साथ है, छत के पास है। तो आप जानते हैं कि गर्म हवा राइजेज अप, तो इसीलिए एग्जॉस्ट फैन बी विल एक्सपेल हॉट एयर मोर इफेक्टिवली, क्योंकि वहाँ पे गर्म हवा हाइट पे ज़्यादा कलेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू शट ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो फिर से वही बात आती है, ये आपका घर है और यहाँ पे आपके ये विंडो है, यहाँ पे दरवाज़ा है और इसके ऊपर आपने छत लगाई हुई है टीन की। तो बच्चों जब भी तेज़ हवा इसके ऊपर से चलेगी, तो मैंने क्या बताया, जो एरिया तेज़ हवा के टच में होता है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बिल्डअप होता है, इसीलिए अंदर की हवा का प्रेशर
उस लो प्रेशर बिल्डअप पे डोमिनेट कर जाता है और छत को बाहर की ओर धकेल देता है। इसीलिए हमें ये कहा जाता है कि जब बहुत तेज़ तूफ़ान चलता है तो हमें अपने कुछ विंडोज़ और कुछ थोड़ा सा दरवाज़ा भी हल्का सा खुला रखना चाहिए, ताकि छत के ऊपर का प्रेशर और कमरे के अंदर का जो प्रेशर है वो बराबर हो जाए। इस तरह से छत उड़ने की संभावना कम हो जाती है। अ फ्लैट इन मुंबई विद बालकनी फेसिंग द सी हैज़ सम क्लोथ्स हंग ऑन द क्लोथ लाइन इन अ बालकनी टूवर्ड विच डायरेक्शन द क्लोथ विल बी ब्लोन इन द आफ्टरनून। भैया आपका फ्लैट है मुंबई में और आपने सी फेसिंग पे कुछ कपड़े लटकाए हुए हैं। अब ये कपड़े किस डायरेक्शन में ब्लो करेंगे? समय आफ्टरनून का है। क्या ये समंदर की तरफ ब्लो करेंगे या फिर आपके घर की तरफ ब्लो करेंगे, उड़ेंगे? तो देखिए आफ्टरनून में चलती है सी ब्रीज़, तो सी ब्रीज़ का मतलब है कि सी ब्रीज़ चलती है सी से लैंड की तरफ। ये सी है और ये लैंड है, तो इसीलिए जो कपड़े भी हैं वो भी किस डायरेक्शन में ब्लो करेंगी? घर के भीतर की तरफ ये ब्लो करेंगी, ना कि समंदर की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे भी आपको सी ब्रीज लैंड ब्रीज पे क्वेश्चन दिया गया है। एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है, पेड़ दिखाए गए हैं, आफ्टरनून का समय है, समंदर तट है और आपको बताना है कि किस तरफ समंदर है, ए साइड या बी साइड। तो भैया आफ्टरनून के समय में सी ब्रीज चलती है। सी ब्रीज का मतलब है कि वो हवाएं जो चलती हैं समंदर से लैंड की ओर, तो इसीलिए बी होना चाहिए सी और ए होना चाहिए लैंड, और इसीलिए ये सी ब्रीज इन पेड़ों की डायरेक्शन को लैंड की तरफ झुका रही है। क्वेश्चन नंबर 15, अ फ्लैग माउंटेड ऑन अ फ्लैग पोस्ट नियर द सी कोस्ट फ्लटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सी। तो एक झंडा जो है समंदर के नज़दीक है और ये फ्लटर कर रहा है समंदर की ओर। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डज दिस हैपन? तो ये किस समय होगा, मिडनाइट के समय या आफ्टरनून के समय में? तो हम तीसरी दफ़ा आपको बता रहे हैं कि आफ्टरनून के समय में तो लैंड ब्रीज चलती है, दिन के समय में या आफ्टरनून के समय में लैंड ब्रीज चलती है। अगर लैंड ब्रीज चलेगी तो झंडे का जो डायरेक्शन है वो तो लैंड की तरफ रहेगा, लेकिन झंडे की डायरेक्शन है सी की तरफ। इसका मतलब ये मिडनाइट का समय है, क्योंकि मिडनाइट के समय में आपकी सी ब्रीज नहीं चलती, वहाँ चलती है लैंड ब्रीज। ओके, तो लैंड ब्रीज का मतलब है जो ज़मीन से समंदर की ओर चलती है। ओके, तो ये आपके झंडे को भी समंदर की ओर इसका रुख कर देती है। ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड्स एंड इट राइजेज, ऑन कूलिंग एयर डिसेंड्स एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बातें आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पहेली ने एक खाली बॉटल को फ्रिज के अंदर रख दिया। कुछ घंटे के बाद जब उन्होंने फ्रिज को खोला तो उन्हें पता लगा कि बॉटल कोलैप्स हो गई है, सिकुड़ गई है, क्योंकि ठंडी की वजह से उसके भीतर की हवा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इसकी वजह से अंदर लो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और इसीलिए बाहर का प्रेशर उसे जो है कॉन्स्ट्रैक्ट कर देता है, उसे कोलैप्स कर देता है। ओके, इस तरह से बॉटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन स्ट्रॉन्ग हाई स्पीड विंड्स ब्लो एन अम्ब्रेला हेल्ड अपराइट एट टाइम्स गेट्स अपटर्न्ड। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हमारी छतरी उलट जाती है। फिर से वही बात, जैसे ही तेज़ हवा छतरी के सरफेस के ऊपर से ब्लो करती है तो छाते के सरफेस के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है और छाते के नीचे की हवा का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो उसे उलट देती है, इसीलिए छतरी आपकी उलट जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, सजेस्ट सम प्रिकॉशन टू बी टेकन टू प्रिवेंट द रूफ ऑफ अ टिन शीट फ्रॉम फ्लाइंग अवे ड्यूरिंग वेरी फास्ट विंड स्टॉर्म। जब बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान चलते हैं तो छत की हवाएं उड़ जाती हैं, उससे बचने के लिए क्या करना है? नंबर 1 तो है आप छत के ऊपर हैवी स्टोन्स ब्रिक्स वगैरह रख दीजिए। नंबर 2, उसमें जो स्क्रूज़ हैं वो बहुत टाइटली अच्छे से लगे होने चाहिए। और नंबर 3, आपको कुछ खिड़की दरवाजे या खिड़कियाँ ओपन रखनी चाहिए जो एग्जैक्टली उस छत के नीचे के कमरे होते हैं उनकी। इस तरीके से प्रेशर अबव एंड बिलो सेम रहता है और छत के उड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट
दैट वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। तो बच्चों वार्म एयर लाइट होती है, इसको करने के लिए आपको एक स्टिक लेना है, उस स्टिक के सेंटर में आपने एक धागा बांध के स्टैंड से लगा देना है। अब इसके दोनों एंड्स पे भी आपने धागे लेने हैं और यहाँ पे आपने पेपर सेम साइज़ और सेम वेट और इसका आपने पेपर के 2 लिफाफे लेने हैं और एक लिफाफे के नीचे आपने कैंडल जला देनी है दूरी पर। हवा गर्म इसके अंदर एंटर करेगी और गर्म हवा लाइट होने की वजह से इस पेपर के बैग को ऊपर राइज करा देगी और आपका ये जो डंडा है ये बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ओके, ये ऊपर की तरफ और ये कोल्ड एयर वाला जो डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ। ओके, तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि हॉट एयर इज लाइटर इन वेट। क्वेश्चन नंबर 21, फिगर 8.4 shows the tree line along the sea coast of an island near the equator. As shown, tree tops are permanently bent in one direction, all or the trees bent towards sea or away from it. देखिए भैया, इक्वेटर में जो अनइवन हीटिंग वो होती रहती है। ओके, दिन के समय में वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और गर्म हवा जब ऊपर राइज करती है तो उसकी जगह लेने के लिए समंदर से हवाएं चलती हैं ज़मीन की ओर, जिसे हम कहते हैं सी ब्रीज। तो ये सी ब्रीज इन पेड़ों को झुका देती है किसकी तरफ, अवे फ्रॉम द सी। तो इसीलिए आई होप यू गॉट, सी ब्रीज बेंट द ट्रीज डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 में जाते हैं। मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ तो आप इसमें देखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स को जो ढूंढना है, सर्च करना है जो इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या क्या वर्ड्स दिख रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वर्ड लाइटनिंग। ओके, लाइटनिंग वर्ड मुझे दिख रहा है और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है मुझे दूसरा वर्ड और क्या दिख रहा है, आप सभी कोशिश कीजिएगा ताकि हम इस वीडियो की लेंथ को भी थोड़ी सी छोटी कर सकें। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यस यस यस, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक और वर्ड साइक्लोन। ओके, और साइक्लोन के बाद यहाँ पे एक और वर्ड मुझे नज़र आ गया है, वाओ, ये है टॉर्नेडो। और एक और वर्ड मुझे यहाँ पे दिखने वाला है, ये है थंडर स्टोर्म। ओके, और एक वर्ड कोई और दिखने की कोई पॉसिबिलिटी है, यस, इट इज़ हरिकेन। तो बच्चों आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक और वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, लाइटनिंग। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ शब्द हैं जो मुझे मिले हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो इस वीडियो से आपने देखा होगा कि जब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, हम रियल सिचुएशन में उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं और यही हमारे विज्ञान विषय का मेन पर्पस है, टू अप्लाई द नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। And till I launch my next video, keep rocking, stay fit, stay fine, bye bye. Thank you.